Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And yesterday we have started our chapter biotechnology and its application, and we have started to discuss the application of biotechnology in agriculture. In order to enhance the production in agriculture, I had told you we can use agrochemical farming. Agrochemical farming was having a drawback that it causes a lot of toxicity. Then we can use organic farming. The drawback for organic farming was that it was not able to produce sufficient amount of product, and the third option was genetic engineering. I had told you what is genetically modified organism, what is the case of transgenic organism, or what is transgene. Then I told you that how that transgenic animal is going to enhance our productivity. Either they would be generating some abiotic stress, or they would be minimizing post-harvest loss and all the thing. Then I told you that in order to genetically modify organism, we can do two things. Either we can add a gene or either we can subtract a gene. Today in this lecture, we are going to discuss about gene addition example. By adding certain gene, one or several genes has been added inside the organism in order to generate the desired product. So today we are going to discuss about examples of gene addition for production of genetically modified organism. And first example we are going to discuss is golden rice. The first example of gene addition which we are going to discuss is golden rice. I will be telling you about the science, about the biotechnology or genetic engineering behind golden rice. See, this golden rice strain, it was being developed by two researchers in year 1990s. During the time of 1990s, the technique of the golden rice was developed by two scientists. The name was Ingo Portricus and Peter Beer. So, golden rice was developed by Ingo Portricus and Peter Beer. You have to remember these two names. These two names has been asked multiple times. Who are the two scientists which got the credit for development of golden rice? The name of these two scientists are Ingo Portricus and Peter Beer. Now, so in the year during 1990s, see, rice is most common staple food, most commonly consumed food. And if we modify the nutritional value of rice, it would help us to overcome a lot of defect. So Dr. Ingo Portricus and Peter Beer during 1990s developed golden rice to combat the deficiency of vitamin A as well as iron. To combat vitamin A and iron deficiency. So golden rice was developed. Golden rice is a modified form of rice which is having high amount of vitamin A as well as iron. This rice can accumulate beta carotene as it can accumulate beta carotene. What is that beta carotene, by the way? Ever heard about beta carotene thing? Beta carotene is a red or orange color pigment which has been found in many plants and fruit, especially like carrot as well as other colorful vegetable. It is a red Red must be written in red marker, right? Visibility is more of red, I feel so.
red and orange color pigment found in many fruits and colorful vegetable, especially like carrot. सो जो बीटा कैरोटीन होता है वो एक तरह का पिगमेंट होता है, और मैं आपको बता दूं बीटा कैरोटीन इनसाइड ह्यूमन बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए. सो बीटा कैरोटीन इज अ कैरोटीनॉइड. बीटा कैरोटीन इज अ कैरोटीनॉइड, अ टाइप ऑफ secondary metabolite which has been produced in several fruits as well as several vegetables, the colorful vegetable. The color of beta carotene is somewhat red and orange. This beta carotene inside human body is converted into vitamin A. Beta carotene is converted to vitamin A in human body. So if we are having a food which is rich in beta carotene, eventually that beta carotene would be converted into vitamin A, which form retinol form, which would be eventually converted into retinol later on. For the time being, just remember that beta carotene is converted into vitamin A inside the human body, and that retinol, which is eventually converted into retinol, that retinol is having different फायदे के लिए वर्ड यूज करें, बेनिफिट्स, डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन बॉडी. लाइक इट इज गुड टू एनहांस योर eyesight, it is good for vision, as well as it is good to enhance your working of immune system. This retinol, it is good for vision, as well as it is also acting as a immune booster. So what I told you yet, that golden rice mainly have beta carotene, and this beta carotene inside human body is converted into vitamin A. So if somebody is eating golden rice, he is having a high dose diet of vitamin A as well as iron. So golden rice is a transgenic variety of rice. Rice होता है Oryza sativa. It's a transgenic variety of rice which contains good quantities of beta carotene, which is also referred as to provitamin A or inactive state of vitamin A. Next statement about golden rice. Let me write a definition about golden rice here, that golden rice is a transgenic crop. Golden rice is a transgenic variety of rice, in bracket I will mention Oryza sativa, which is having which contains a high amount of good quantities of beta carotene, which contains a good quantity of beta carotene, and this beta carotene is inactive form of vitamin A. We call that provitamin A, or let's call that inactive state of vitamin A. Provitamin A, or let's call that inactive state of vitamin A. And this beta carotene, after getting inside the body, is eventually converted into vitamin A. So there is no fun in telling that beta carotene is the principal source of vitamin A. I repeat, I am not going to mention that statement, but I repeat that this beta carotene is the principal source. Beta carotene is the principal source of vitamin A. Is that clear, bachcho? Now, why we call that golden rice? Since the grain, or let's call that seeds of golden rice, are pale yellow in color. And why they are pale yellow in color? Due to accumulation of beta carotene.
The common name of this rice is golden rice. Why the name golden rice? Due to accumulation of beta carotene, its grain or seed appears pale yellow in color. It appears pale yellow in color. That's why the name golden rice. So golden rice was developed by Ingo Portricus and Peter Bayer during 1990s to combat vitamin A and iron deficiency, as golden rice can accumulate beta carotene. Beta carotene is a red and orange color pigment which is found in many fruit and colorful vegetable like carrot. Beta carotene, after getting inside human body, is eventually converted into vitamin A. So golden rice is the transgenic variety of rice, Oryza sativa, which contains a good quantity of beta carotene, which is the principal source of vitamin A. Beta carotene is also known as provitamin A or inactive state. And why we call that golden rice? Due to the deposition of beta carotene, this rice appear pale yellow in color. This rice appear pale yellow in color. अब हम पढ़ेंगे थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग, गोल्डन राइस को बनाया कैसे गया है. ये तो हो गया गोल्डन राइस के बारे में इंट्रोडक्शन. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अबाउट गोल्डन राइस. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 2 बायोसिंथेटिक जीन हियर. Genetic engineering, let me clear up all this here. Just give me a few seconds. Obviously देखो, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको सिलेक्ट किया हो गया होगा, उसको फिर एक वेक्टर के साथ उन्होंने लाइगेट किया होगा, फिर उस वेक्टर को एक कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया होगा. अब ये तो समझ में आ गया इतना पढ़ के कि जो कॉम्पिटेंट होस्ट है वो राइस प्लांट था, कि उसी को ट्रांसजेनिक बनाया. जेनेटिक इंजीनियरिंग behind golden rice. So I will love to mention about 2 genes here. There are 2 beta carotene biosynthetic gene which were being inserted into a temperate strain of rice using Agrobacterium tumefaciens as a vector. 2 biosynthetic gene were inserted into temperate strain of rice, using Agrobacterium, the natural genetic engineer. Remember, tumefaciens as vector. What are the name of those 2 genes and what are their sources? The first gene is referred as to PSY gene, phyotin synthetase. First gene is PSY gene. PSY gene is phyotin synthase. जो PSY जीन होता है डेट कोड फॉर बीटा कैरोटीन, और PSY जीन का जो सोर्स था डेट वाज डैफोडिल प्लांट, नार्किसस सूडोनार्किसस. डेट वाज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम डैफोडिल प्लांट. और डैफोडिल प्लांट का जो साइंटिफिक नेम हो, देखो एक तो प्लांट का जीन था और दूसरा जीन आपका बैक्टीरिया का था. आई विल बी गोइंग ऑन द बैक्टीरियल जीन वेरी सून. लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट दिस डैफोडिल प्लांट. डैफोडिल प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नार्सिसस नार्सिसस. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, आप आंसर करेंगे फ्रॉम द डैफोडिल प्लांट नार्सिसस सूडोनार्सिसस. एम आई क्लियर अप टू हियर? ये सबसे कॉमनली आस्क्ड है. दिस इज द वन विच इज कॉमनली आस्क्ड, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में एक ही जीन के बारे में लिखा है. पर जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सेकंड जीन के बारे में भी बता देता हूँ. एक जीन लिया था उन्होंने बैक्टीरिया से, और बैक्टीरियल जीन भी कोड करता है बीटा कैरोटीन के लिए. उस जीन का नाम होता है CRTL जीन. उस जीन का जो नाम होता है डेट इज CRTL जीन. दिस CRTL जीन
इट स्टैंड फॉर, इट कोड फॉर ए प्रोटीन, और उसको बोलते हैं द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज फायोटीन डीसेटुरेज, द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज फायोटीन, द सेम थिंग, सिंथेज की जगह वहां पे वर्ड आता है डीसेटुरेज, फायोटीन डीसेटुरेज. Now don't ask me why the name CRTL है, right? Anyways, तो जो PSY जीन था वो था आपका डैफोडिल प्लांट नार्सिसस सूडोनार्सिसस से, और जो CRTL जीन है that is फायोटीन डीसेटुरेज, it was been isolated from a soil bacterium, और soil बैक्टीरियम का नाम था Alveana. We called that Alveana. The name of that bacteria was Alveana euroduora. Alveana euroduora. Alveana यूरोडुवोरा, खैर ई यूरोडुवोरा कह देते हैं उसको. डेट इज ए सोयल बैक्टीरियम, डेट इज सोयल बैक्टीरियम. सो आपकी जो जीन, दे आर टू बायोसिंथेटिक जीन which was being inserted into the temperate strain of rice using Agrobacterium tumefaciens as a vector. One was PSY gene from daffodil plant and second was from CRTL gene from E. euroduora. ठीक है बच्चों, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने आइसोलेट किया, उसको ऐड किया वेक्टर के साथ, और जो होस्ट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. होस्ट क्या है यहाँ पर, ट्रांसजेनिक होस्ट क्या है यहाँ पर, ओराइजा सटाइवा और सिंपली राइस प्लांट. अब जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बना, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं बाकी वेराइटीज से, माने वो भी क्रिंकी होते हैं, उसके अंदर भी जो हस्क होता है वो स्केबियस होता है, पर उनका जो कोर होता है, कोर ऑफ द ग्रेन इज पेल येलो, दैट्स व्हाई द नेम येलो राइस. आई रिपीट कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसके जो ग्रेन्स हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू द अदर वेराइटीज ऑफ राइस in their crinkliness as well as they are having very scabious husk, but in the core of that grain there is a lot of beta carotene, और जो कोर होता है वो कैसा हो जाता है, पेल येलो. बाकी जो राइस है उनका कोर कैसा देखने को मिलता है, आपको मिलता है बाकी राइस का कोर जो है पर्ली वाइट होता है, और पर्ली वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इतना बीटा कैरोटीन नहीं होता है. तो यहाँ पर जो कोर था डेट वाज पेल येलो. ये होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में. नाउ व्हाई हाउ वेयर दिस गोल्डन राइस इज यूज्ड. गोल्डन राइस इज यूज्ड टू ओवरकम night blindness. Night blindness is due to the deficiency of vitamin A. Night blindness is due to the deficiency of vitamin A as well as xerophthalmia, ड्राई आइज. तो जब भी आपको ना विटामिन ए डिफिशियंसी को लेकर अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपके विज़न के रिलेटेड होता है. तो भाई गोल्डन राइस के बारे में अगर पढ़ें, सबसे पहला जो जीन एडिशन का एग्जांपल है वो गोल्डन राइस है. कौन दो साइंटिस्ट थे, इंगो पोर्ट्रिकस एंड पीटर बेयर. 1990s में उन्होंने गोल्डन राइस बनाया था. गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है जो सोर्स होता है विटामिन ए का. गोल्डन राइस के अंदर आयरन भी होता है, ये भी याद रखे चलेंगे. जो वेक्टर यूज़ किया था वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस था. जो सबसे कॉमनली यूज्ड और कॉमनली आस्क्ड जीन पूछा जाता है दैट इज बीटा. द जीन एनकोडिंग फॉर बीटा कैरोटीन वाज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम डैफोडिल प्लांट और नार्किसस सूडोनार्किसस. ये वाले स्टेटमेंट जो याद रखेंगे. जो ई यूरोडुवोरा वाला जीन है वो इतना कॉमन जल्दी से नहीं पूछा जाता है. ठीक है बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जीन एडिशन इज कंप्लीटेड. अब पढ़ते सेकेंड एग्जाम्पल. आपने एक एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ा होगा जब आप एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ रहे थे. वहाँ पे एनिलीड में आपने पढ़ा था कि भाई जो हीरोडीन होता है वो एंटीकोगुलेंट बनाता है. अब उस हीरोडीन का वो जो जीन है, जो आपके पास ब्लड लीच है, उसके अंदर जो जीन एनकोड कर रहा है हीरोडीन के लिए, उस जीन को आपने सिंथेटिकली बनाया आउटसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और इनसाइड द लैब. केमिकल सिंथेसिस ऑफ दैट जीन किया और उसे एक प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब वो जीन जब एक्सप्रेस हुआ तो उसके सीड्स के अंदर वो प्रोटीन आने शुरू हो गए और आपको सिंथेटिक फॉर्म ऑफ हीरोडीन मिलना शुरू हो गया. तो जो सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे दैट वुड बी प्रोडक्शन ऑफ हीरोडीन फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट ब्रेसिका नेपुस.
Second example is production of hirudin from transgenic plant Brassica nepus seeds. In the seeds of that Brassica nepus, transgenic Brassica nepus, hirudin has been produced. थोड़ा hirudin के बारे में बता देता हूँ. What do you know about hirudin? Hirudin is a naturally occurring anticoagulant. It's a naturally occurring anticoagulant. और ये किसकी saliva में मिलता है? Generally, hirudin is a naturally occurring anticoagulant which has been produced and secreted in the salivary gland of medicinal leech. And what was the name of medicinal leech? Hirudo medicinalis. In salivary gland of Hirudo medicinalis. तो ये जो ब्लड लीच होता है इसके स्लाइवा के अंदर नेचुरली हिरुडिन प्रोड्यूस होता है. और क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो ब्लड वगैरह शक करता है ताकि वो कोगुलेट ना करे तो उसके लिए एंटी कोगुलेंट करता है. तो आई कैन से जो आपके पास हिरुडिन होता है उसकी खूब सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ अभी तो हम पढ़ रहे ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में कि भाई हम ब्रेसिका निपुस में कैसे बनाते हैं. लेट मी टेल यू हियर कि जो हिरुडिन होता है वो इन वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस किया जाता है. लाइक ईस्ट के अंदर भी हिरुडिन बना लेते हैं, ई कोलाई के अंदर भी हिरुडिन बना लेते हैं. पर उस प्रोडक्शन में खूब सारा कॉस्ट लगता है बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह थे वो बहुत कॉस्टली थे. उन फर्मेंटेशन प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए वो के फर्मेंटेशन प्रोसेस का सहारा ना लेना पड़े, एक नेचुरल प्लांट के सीड में ही वो बनना शुरू हो जाए. जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने सेलेक्ट किया था ब्रेसिका निपुस. तो जो अब मैं बता देता हूँ कि हिरुडिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन माइक्रोब्स लाइक ईस्ट एंड ई कोलाई, बट द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन वाज द कॉस्ट ऑफ द फर्मेंटेशन वाज वेरी हाई, इसलिए उसको जनरली हम प्रीफर नहीं करते हैं. अब यहाँ पे क्या करते हैं ये भी मैं बता दूँ आपको. सबसे पहले आप लेते क्या है, आपने लेबोरेटरी के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए सिंथेसाइज किया और ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए आइडेंटिकल है उस जीन के जो मेडिसिनल लीच के अंदर है और जो कोड करता है फॉर द प्रोटीन हिरुडिन. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, लेट मी टेल यू हियर, इट इज केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए. इट इज केमिकली सिंथेसाइज्ड. ये नेचुरल नहीं है sequence of DNA. This chemically synthesized sequence of DNA by using Agrobacterium tuminaceans, using Agrobacterium tuminaceans इसको इंट्रोड्यूस कर दिया आपने एक प्लांट में. और ये जो प्लांट है ये ब्रेसिका का प्लांट है. Let's say this plant here is of Brassica plant, right? Ignore my drawing, right? No one would compliment my drawing here. अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर जो भी सीड्स वगैरह हैं उन सीड्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया ये प्रोटीन. जो भी यहाँ पे सीड्स वगैरह मिले आपको, लेट्स से ग्रीन कलर में सीड्स दिखा रहा हूँ, बाकी मैं लीफ दिखा रहा हूँ. व्हाट इज दिस प्लांट हियर? दिस इज transgenic Brassica plant. This is transgenic Brassica plant. इस ट्रांसजेनिक ब्रेसिका प्लांट से आपने आइसोलेट किए इसके सीड्स. That seeds has been isolated. अब हम करना शुरू कर देंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन सीड्स के ऊपर. These are the seeds which contain what? These are the seeds which contain hirudin. And let me do certain downstream processing here. In downstream processing, what we do, we use to isolate and purify our product. Isolation
and purification, that is downstream processing, what will we get? We will get the synthetic form, or we will get the purified form of hirudin. We will be get here purified hirudin. तो बच्चों ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना कि जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए यूज़ हुआ था यहाँ पर. तो मेनली आपने क्या किया, इन द प्रोडक्शन ऑफ डेट हिरुडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट ब्रेसिका निपूस, chemically synthesized DNA has been produced in laboratory. These DNA using Agrobacterium tumefaciens are inserted in Brassica nippus plant. That Brassica nippus plant become transgenic plant. That transgenic plant produce seed, and those seeds are having hirudin. Later on, by doing downstream processing, that hirudin has been purified. So अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से explain करूँ तो I will say that gene encoding hirudin was chemically synthesized and introduced into Brassica nippus plant using Agrobacterium mediated transformation. This Agrobacterium mediated transformation results in the formation of transgenic plant which yield seeds having a high amount or having a good amount of hirudin. In these seeds, hirudin was accumulated. That hirudin is purified and later on it has been used as a medicine. अब यहाँ से एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है, इस केस में जो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है वो कौन है? ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट इज द प्लांट इटसेल्फ. इन दिस केस इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर, in this case the transgenic plant is the product itself. In this case the transgenic plant is the product itself. आप देख भी रहे होंगे ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर ही प्रोडक्ट वगैरह फॉर्म हो रहा है, उसके सीड के अंदर ही प्रोडक्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा है. ये बच्चे हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट. इसमें तीन चीज़ याद रखेंगे, हिरुडोमेडिनेंसिस के बारे में याद रखेंगे जो ब्लड लीच है, हिरुडिन एज एंटीकोगुलेंट, chemical synthesized gene, Agrobacterium tumefaciens, and last but not the least Brassica nippus का नाम याद रखेंगे. Right. Now before starting the biology of BT cotton, which is the majorly discussed example in gene addition, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ. ये तो फार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल हो गया भाई. पहला जो एग्जाम्पल था वो कौन सा था हमारा, कि एग्रीकल्चर में एज ए फूड टेक्नोलॉजी में कैसे आप जीन एडिशन करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया कि फार्मास्यूटिकल्स में कैसे आप जीन एडिशन कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर में ही चल रहा है. फिर एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप कि भाई इन द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ फ्यूल, कैसे आप प्लांट को मॉडिफाई कर लेते हैं. उसमें मैं एक दो स्टेटमेंट ही बताऊंगा. सर्टेन ट्रांसजेनिक प्लांट can be used as an alternate. Transgenic plant can be used as an alternate resources to industries in form of fuel. ठीक है बच्चों. Here I will love to discuss जो आपके ऑयल सीड्स वगैरह होते हैं वो मेनली यूज़ किए जाते हैं फॉर मार्जरीन समझते हो, जिसको आप ना आर्टिफिशियल बटर भी कहते हैं. तो आर्टिफिशियल बटर या अदर फूड ऑयल में आप ऑयल सीड वगैरह कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, पर उन ऑयल सीड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड फॉर डिटर्जेंट एज वेल एज ए सब्सटीट्यूट फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स. आई रिपीट, जितने भी ऑयल सीड वगैरह होते हैं, जितने भी ऑयल सीड्स हैं, दे हैव बीन यूज्ड एज मार्जरीन. जो मार्जरीन होता है वो आपका उसको ना नकली बटर कहते हैं, वैसे आर्टिफिशियल बटर के जैसा होता है, वनस्पति अगर आपने देखा हो. ठीक है, एंड फूड ऑयल्स.
अब ये जो ऑयल सीड्स हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं. दीज ऑयल सीड्स कैन बी मॉडिफाइड एंड दे कैन प्रोड्यूस फैटी एसिड फॉर डिटर्जेंट. दे कैन बी मॉडिफाइड बाय डूइंग सर्टेन जेनेटिक इंजीनियरिंग, modified by genetic engineering, and they can be used for the production of fatty acid, for detergents, as well as they can be used as an alternate of fuel, and they can be used after modification in petrochemicals as a substitute of fuel and petrochemical, as a substitute of फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स. एक साल ना क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई ट्रांसजेनिक प्लांट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो एज ए अल्टरनेट रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ फ्यूल, ये याद रखना है, एज ए अल्टरनेट रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ फ्यूल. ज़्यादा किताबों वगैरह में ये डिस्कस नहीं है. ऑल राइट, सो सेकेंड एग्जाम्पल हीरोडिन वाला पढ़ लिया. अब पढ़ते हैं द थर्ड एग्जाम्पल और फाइनल एग्जाम्पल ऑफ जीन एडिशन, एंड दैट वुड बी यूर बीटी कॉटन. दैट वुड बी यूर बीटी कॉटन. प्लीज पे अटेंशन हियर, यहाँ से सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बीटी कॉटन शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा जो खुद अपना इंसेक्टिसाइड बनाते हैं. उनको बोलते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट. प्लांट which makes their own insecticide, or let's call them insect resistant plant. Let's call them insect resistant plant. तो पहला आपने न्यूट्रिशन वैल्यू वाला पढ़ा, दूसरा आपने मेडिसिनल वैल्यू वाला पढ़ा, और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट. सी व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट, प्लांट्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू प्रीडेशन बाय वर्चुअली ऑल अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. प्लांट के ऊपर कौन कौन अटैक करता रहता है? प्लांट हैज बीन कॉमनली अटैक्ड बाय बैक्टीरियाज, प्लांट्स हैज बीन कॉमनली अटैक्ड बाय वायरसेस, इवन प्लांट हैज बीन कॉमनली अटैक्ड बाय एनिमल्स, प्लांट हैज बीन कॉमनली अटैक्ड बाय फंगस. बट इन एग्रीकल्चरल सेटिंग जो बिगेस्ट प्रॉब्लम कॉज करता है वो कौन कॉज करता है? डेट इज इंसेक्ट. इंसेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोस्ट अबंडेंट होते हैं. आई एम नॉट गोइंग देयर. सो इन एग्रीकल्चरल सेटिंग द बिगेस्ट destruction of plant, it has been caused by insect. Now to reduce loss, crop has been regularly sprayed by insecticide. जनरली आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास क्रॉप वगैरह होती है उसके प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए आप टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी से हम क्यों ना एक ऐसा क्रॉप बना ले जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए, उसके ऊपर आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं होगी. So application of biotechnology lead to the development of pest resistant plant or insect resistant plant which can decrease the amount of pesticide used, which can decrease the amount of insecticide used. तो हम शुरू करते हैं द साइंस बिहाइंड बीटी कॉटन. पहले मैं आपको बैसिलस thuringiensis के बारे में बताऊंगा. तो जो बताया है वो क्लियर हो गया. आई टोल्ड यू कि भाई प्लांट वर्चुअली ना प्रीडेशन में होता है बाय वायरसेस, फंगस, एनिमल्स और अदर माइक्रोब्स, पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इंसेक्ट वगैरह कॉज कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होता है. तो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ हम ऐसे प्लांट बना लेते हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, और आपको इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा. लेट स्टार्ट अबाउट फर्स्ट. लेट मी टेल यू अबाउट बैसिलस thuringiensis. thuringiensis. एक साल क्वेश्चन पूछा गया था बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या होता है. ऑप्शन में बायोटेक्नोलॉजी भी था, बच्चे बायोटेक्नोलॉजी मार्क करके आ गए थे. जो बीटी होता है दैट इज एब्रीविएशन फॉर द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis. दैट इज एब्रीविएशन फॉर द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis. अब जो ये सोयल बैक्टीरियम होता है, इट्स अ कॉमनली अकरिंग सोयल बैक्टीरियम. थोड़ा सा पहले इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं, जो प्रोटीन बनाता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं,
और कैसे वो प्रोटीन हमारे लिए यूजफुल है टू डेवलप दैट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, फिर हम डिस्कस करेंगे। बीटी कॉटन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो बैसिलस thuringiensis होता है, इसके पास ना एक कंप्लीट फैमिली ऑफ जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। इट इज हैविंग अ फैमिली ऑफ जीन, अबाउट 1 to 40 जीन्स होते हैं जो उसके प्लाज्मिड पर होते हैं, फैमिली ऑफ जीन, और जीन को बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि ये जो प्रोटीन बनाने वाला है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है, तो उस क्रिस्टलाइन के क्राई से आ गया है। जब आप जीन का नाम रखते हो तो उसको इटैलिक्स में लिखते हो, स्मॉल में लिखते हैं। जब आप प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, इट मेक्स क्राई प्रोटीन। तो जब प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको कैपिटल कर देते हैं, और जब जीन को लिखते हैं तो स्मॉल में लिखते हैं। और कैसे करते हैं बेटा? दैट इज रिटन इन इटैलिक्स। एनीवेज, अब ये जो फैमिली ऑफ जीन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 40 जीन्स and they are present over plasmid. They are present over plasmid. The plasmid which naturally occur in this bacteria. Now these family of gene they synthesize an endotoxin protein जिसका नाम होता है क्राई प्रोटीन। They synthesize an एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम होता है क्राई प्रोटीन। तो ये सीरीज ऑफ जीन्स है, सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स है। देखो, अलग अलग जीन से अलग अलग क्राई प्रोटीन बनेगा जो अलग अलग स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के अंदर खूब सारे जीन्स होते हैं, अबाउट 1 to 40 जीन्स है, फैमिली ऑफ जीन है जिनको हम क्राई जीन कहते हैं। और वो सिंथेसाइज करते हैं एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन जिसका नाम होता है क्राई प्रोटीन। और जो क्राई प्रोटीन होता है, इट इज हैविंग ए कैपेबिलिटी टू किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट। दिस क्राई प्रोटीन इज कैपेबल टू किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? तो बीटी वर्ड कहां से आया? बैसिलस thuringiensis से। जो बैक्टीरिया है वो एक सोयल बैक्टीरियम होता है, उसके अंदर क्राइजीन्स होते हैं। क्राइजीन एनकोड करते हैं क्राई प्रोटीन को। क्राई प्रोटीन एक तरह का एंडोटॉक्सिन होता है। प्लीज डू रिमेंबर अबाउट एंडोटॉक्सिन, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको लेके। और वो जो एंडोटॉक्सिन होता है, मैं अभी बताऊंगा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इंसेक्ट के अंदर जाके वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो एंडोटॉक्सिन होता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट। आर वी डन अप टू हियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन एज आई वाज टेलिंग यू, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ, सी एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं डैप प्रोटीन, और डैप प्रोटीन का मतलब होता है डेथ एसोसिएटेड प्रोटीन। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ डेथ एसोसिएटेड प्रोटीन विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द लार्वा ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। तो जब हम क्राई प्रोटीन को लिखते हैं तो उसको हम डैप भी कह देते हैं। डैप का मतलब हुआ डेथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अलग अलग तरह की डेथ एसोसिएटेड प्रोटीन होती है जो अलग अलग इंसेक्ट के लार्वा को किल करती रहती है। एज द टॉक्सिक क्राई प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, they are called as Bt toxin और the gene Bt toxin gene। इन जीन्स को नॉर्मली कहते हैं Bt toxin gene, और इस प्रोटीन के लिए वर्ड यूज करते हैं Bt toxin। What is the other name of cry protein? The answer to that question would be Bt toxin। क्यों Bt toxin कहा इसको? Because it has been produced where? It has been produced inside Bacillus thuringiensis। Now these genes are now being cloned from bacteria and incorporated into many plant, like you can have the example of Bt cotton, recently Bt corn is there, Bt rice, Bt potato and Bt soybean. These genes are cloned from bacteria and is introduced
in many plants like BT cotton, which we are going to discuss, BT corn, which is the most recent achievement in Bacillus thuringiensis biology. Then BT potato is there, BT rice is there, BT soyabean is there. कम से कम ये 5 तो याद रखेंगे आप, BT कॉटन, BT कॉर्न, BT पोटैटो, BT राइस एंड BT सोयाबीन। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं, जिनके अंदर क्राई जीन होता है या फिर जिनके अंदर BT जीन होता है, उन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को नहीं ज़रूरत होती है किसी भी तरह की इंसेक्टिसाइड की, क्योंकि वो खुद कैसे काम करते हैं, दे इटसेल्फ एक्ट एज बायो इंसेक्टिसाइड। The genetically modified crop with BT toxin or genetically modified crop with BT gene act as bioinsecticide. Genetically modified crop with BT genes act as bioinsecticide. They do not require any spray of insecticide. They do not require any spray of insecticide. Are we done up to here? तो जो Bacillus thuringiensis है उसको एब्रीविएट करते हैं BT, उसके अंदर फैमिली ऑफ जीन होता है जिसको बोलते हैं BT जीन्स और क्राई जीन्स, और जो क्राई जीन्स है जो इनके इनकोड होते हैं तो एक एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जिसका नाम होता है क्राई प्रोटीन। और जो क्राई प्रोटीन है वो एक तरह की डेथ एसोसिएटेड प्रोटीन होता है जो लार्वा ऑफ इंसेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है ना, अब एक लिस्ट बना लेते हैं कुछ इंसेक्ट्स की जो कॉमनली अफेक्ट होते हैं बाय क्राई प्रोटीन। कॉमनली अफेक्टेड इंसेक्ट्स बाय क्राई प्रोटीन, और लेट्स कॉल दैट डेप, डेथ एसोसिएटेड प्रोटीन। कौन कौन से इंसेक्ट के जो ग्रुप्स हैं वो कॉमनली अफेक्ट होते हैं बाय दीज प्रोटीन्स। पहला ग्रुप आता है लेपिडोप्टेरन्स का। लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं बेटा टोबैको, बॉलवर्म और आर्वीवॉर्म। पहला जो ग्रुप होता है वो होता है लेपिडोप्टेरन्स, और लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं टोबैको, बॉलवर्म एंड आर्मीवॉर्म। तो फर्स्ट order or first group of insect which is commonly infected by cry protein is Lepidopteran. फिर आता है the largest order of class insecta, the name is Coelopterans, जिसमें beetles आते हैं, Coelopterans, in which beetle falls. Remember Coelopterans is the largest order of class insecta. और जो थर्ड ऑर्डर कॉमनली इन्फेक्ट होता है वो होता है डिप्टेरन्स का, और डिप्टेरन्स में आते हैं आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटो। द थर्ड कॉमनली इन्फेक्टेड ऑर्डर इज डिप्टेरन्स, एंड डिप्टेरन्स इंक्लूड ऑल द फ्लाइज एंड ऑल द मॉस्किटोज। प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक with the members of these orders. So commonly affected order of insect by DAP protein or by cry protein is Lepidopterans, Coelopterans and Dipterans. This insecticide protein which has been produced inside the bacterial gene, or this insecticide protein which has been produced by the bacterial gene, it has been produced in protoxin crystalline inactive state. Next point, insecticide protein. When I say insecticide protein, I mean to say cry protein or BT toxin. BT toxin is produced by bacteria in inactive state, or let's call that protoxin. तो बैक्टीरिया को कई बार पूछता है कि बैक्टीरिया को ये टॉक्सिन क्यों हार्म नहीं करता है। उसका जवाब होगा कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंडोटॉक्सिन है ये क्रिस्टलाइन स्टेट में तो होता है, बट ये
प्रोटॉक्सिन क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, ये एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। और जैसे कोई इंसेक्ट फीड करता है ऐसे प्लांट पर जिसके अंदर ये टॉक्सिन बन रहा है, ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो, पहले तो ये पास करेगा इनसाइड द गट ऑफ इंसेक्ट, जिस इंसेक्ट ने फीड किया है उसके गट के अंदर ये प्रोटॉक्सिन जाएगा और वहाँ पे जाके इसको मिलेगी अल्कलाइन पीएच, और अल्कलाइन पीएच में जाते ही ये, और अल्कलाइन पीएच एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इट बिकम एक्टिवेट, इट बिकम solubilize and the crystalline protein protoxin convert into toxin. तो insecticidal protein or BT toxin, it is produced by bacteria in inactive state of protoxin when engulfed by insect. It goes to the gut of insect and in gut of insect it was crystalline. अब तक ये crystalline था protoxin, it was a crystalline protoxin. It is activated by alkaline pH, something very important, and dissolved by digestive enzymes. So it solubilize into active state, into active form, which is toxin here. This thing is very important. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो बीटी टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है जो इनएक्टिव स्टेट होती है। जैसे ही उसको इनगल्फ करता है इंसेक्ट, वो इंसेक्ट की गट में चला जाता है, गट इज एलिमेंट्री कैनाल, और वहाँ पे जाके जब उसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म डिजोल्व हो जाती है बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो टॉक्सिन बन जाता है। अब ये जो टॉक्सिन है ये बाइंड करता है टू द एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। नेक्स्ट, दिस टॉक्सिन, ओके आई एम क्लियरिंग अप दिस पार्ट फ्रॉम हियर। हाउ दिस टॉक्सिन वर्क, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। दिस टॉक्सिन binds to epithelial cell of insect midgut। तो एक्टिव होने के बाद ये जो टॉक्सिन है वो कहां बाइंड करता है, टू द एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, और वहां पर पोर्स बनाने शुरू कर देता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर। उन पोर के बनने की वजह से मिडगट स्वेल कर जाएगा क्योंकि अनवांटेड फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा एंड सेल लाइस हो जाएगी और इंसेक्ट डाई कर जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन द मिडगट। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोर्स देयर इज स्वेलिंग देयर, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग cell lysis, and because of cell lysis the insect dies. Because of cell lysis insect dies. So again inactive form crystalline alkaline pH get activated, crystalline form is converted into solubilized form by digestive enzyme. Once it is activated, it bind to the epithelial cell of midgut, it result in the formation of pore, that pore formation result in swelling, that swelling result in cell lysis, and eventually the insect dies. Are we done up to here? Since different type of cryproteins are effective against different type of insect, the choice of gene to be incorporated depends upon the group of insect which is invading a particular crop. Is that clear? Now let us discuss about BT cotton. आपको Bacillus thuringiensis के बारे में बता दिया, टॉक्सिन के बारे में बता दिया, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बता दिया, कैसे काम करता है ये बता दिया। अब हम पढ़ लेते BT cotton के बारे में, ठीक है। डू यू हैव एनी आइडिया विच इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड
Any idea? The answer is not BT cotton. Don't go on the BT cotton part. My intuition says there are several strands which says BT cotton would be the first. BT cotton is not the first transgenic plant to be produced. The answer to that question is tobacco plant. पहले बीटी कॉटन के बारे में पढ़ लेते हैं. जो बीटी कॉटन है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप था इंडिया में, और उसको आपने इंट्रोड्यूस किया था 2002 में. इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ट्रांसजेनिक क्रॉप in India during the year 2002. First transgenic plant which was produced. Tobacco is first transgenic plant. और ये ना एक वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन होता है इसमें, ग्लाइफोसेट. विद वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन होता है इसमें, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन. एनीवेज ये डाटा याद रख लेंगे. हम वापस आते हैं अपने बीटी कॉटन के ऊपर. सो जो बीटी कॉटन है डेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2002. जो हमारे पास कॉटन होता है वो मोल कॉमनली अटैक्ट होता है बाय बॉल वॉर्म. पहले कॉटन के बारे में थोड़ा बताऊं. कॉटन इज कॉमनली अटैक्ड बाय बॉल वॉर्म्स, एंड देयर आर टू मेजर बॉल वॉर्म्स which are commonly attacking our cotton plant. There are two major bollworm which are commonly attacking our cotton plant. First is Arias vitella. First is Arias vitella, name of a bollworm which has been commonly infecting our cotton plant. And second is Arias insulma. The second one is Arias insulana होता है वो, not insulma. Arias insulana. Anyways अगर ना भी याद है तो कोई इशू नहीं है, कई किताब वगैरह में जल्दी से दिखेगा नहीं लिखा हुआ. खैर, कॉटन इज कॉमनली अटैक्ड बाय बॉल वॉर्म्स. इज दैट क्लियर अप टू हियर? इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है बॉल वॉर्म की वो होती है कैटरपिलर लार्वा. द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ बॉल वॉर्म to cotton plant is caterpillar larva. आपको लार्वा ही खत्म करना था, याद है वो डैप प्रोटीन इज वेरी टॉक्सिक टू दैट लार्वा. एनीवेज, सो कॉटन इज कॉमनली अटैक्ड बाय द बॉलवॉर्म. कॉटन वगैरह के बारे में याद रखना, जो भी ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं और कॉटन वगैरह को ग्रो करते हैं, क्योंकि कॉटन बहुत कम वाटर यूज करते हैं फॉर इट्स ग्रोथ. तो मेनली जो बॉल वॉर्म होता है वो अटैक करता है कॉटन प्लांट पर, उसके अंदर बोर बना लेता है ऑन द टॉप ऑफ टेंडर पार्ट ऑफ शूट. जो भी शूट्स वगैरह होंगे उसके, उनका जो टेंडर पार्ट होता है उसके अंदर ना छोटे छोटे बोर बन जाते हैं, या फिर उसके जो फ्लोरल पार्ट होते हैं कॉटन प्लांट के, वहाँ पे छोटे छोटे से बोर बन जाते हैं, या फिर मैं कहूँगा छोटे छोटे से बॉल बन जाते हैं. उन बॉल्स के अंदर आते हैं आपके छोटे छोटे होल्स. तो लेट मी राइट इट हियर दैट इट अटैक बॉल वॉर्म. कहाँ गया ये रहा. इट अटैक्स द कॉटन प्लांट, एंड द अटैक ऑफ दिस इंसेक्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन एंड बोस द टॉप ऑफ, इट अटैक एंड बोस द टॉप ऑफ जो भी आपका ना टेंडर पार्ट ऑफ शूट होता है, टेंडर पार्ट ऑफ शूट. देन आप उसमें याद रख सकते हैं फ्लोरल एरिया, फ्लोरल रीजन. तो मेनली ये कहाँ कहाँ पे बोर करता है, कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे से होल करता है. टेंडर पार्ट ऑफ शूट में करता है, फ्लोरल रीजन में करता है, और साथ ही साथ जो कॉटन की बॉल्स होती है उनके अंदर होल कर देता है इन द बॉल्स ऑफ कॉटन. अभी जो बॉल्स होती है दे आर द वन
आपको इन्फेक्टेड प्लांट का कैसे पता चलेगा कि वो जो कॉटन की बॉल्स हैं उनके अंदर होल होने शुरू हो जाते हैं। जनरली जो अफेक्टेड प्लांट है वो उनकी जो बॉल्स है वो प्रीमेच्योरली ओपन कर जाते हैं और उनके अंदर ना छोटे छोटे से लिंट बन जाते हैं। लिंट क्या होता है बच्चों, कॉटन के अंदर या कॉटन जैसे प्लांट के अंदर ना एक टेक्सटाइल फाइबर का विजिबल एक्यूमुलेशन आ जाता है। लेट्स से कॉटन है और विजिबल एक्यूमुलेशन आ रहा है कुछ टेक्सटाइल फाइबर का लाइक दिस, इसके लिए लिंट वर्ड यूज़ करते हैं। खैर हम वो चीज़ पे नहीं जा रहे, हमें टॉक्सिसिटी नहीं पढ़नी है यहाँ पर। एनीवेज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जो कॉटन होता है वो कॉमनली अटैक्ट होता है बाय बॉलवॉर्म, एरियास वाइटेला एंड एरियास इंसुलेना, दे आर द टू कॉमन bollworms which affect our cotton plant, and the caterpillar larva is the infected stage और mainly affect करता है tender part of shoot, floral part as well as balls। और इसके जो balls होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, होल वाले हो जाते हैं। ये जो बॉलवॉर्म है ये कॉटन के साथ साथ लेडी फिंगर या ओकरा फैमिली वालों को भी करता है इफेक्ट, या फिर आपके पास और कोई मलवेशियस फैमिली के अगर आपके प्लांट है वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। हमें नहीं बात करनी उसकी। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जो आपकी क्रॉप यील्ड है वो अप टू 60% कम हो जाती है। वंस द इन्फेक्शन इज देयर द यील्ड ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड अप टू 60%। ठीक है बच्चों, नाउ ऐसे केस में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ए वैरायटी विच इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंट। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ए वैरायटी विच इज़ रेजिस्टेंट। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप स्प्रे करना शुरू कर दें, आप स्प्रे करना शुरू कर दें इंसेक्टिसाइड के, जो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इस अटैक को रोकने के लिए आप दो जीन यूज़ करते हैं। इस अटैक को रोकने के लिए, बॉलवॉर्म के अटैक को रोकने के लिए देयर आर टू जीन्स विच हैज़ बीन यूज्ड। एक होता है CRY1AC और दूसरा होता है CRY2AB। वेरी इंपॉर्टेंट, टू जीन्स CRY1AC, जब जीन का ऑर्डर लिखते हैं रोमन में लिखते हैं हमेशा, एंड CRY2AB, they have been synthesized or they have been isolated and they are used to make Bacillus thuringiensis cotton। और टू जीन्स CRY1AB and CRY1AC and CRY2AB are used to produce insect resistant कॉटन प्लांट। इन दो जीन का नाम याद रखना जब बीटी कॉटन की बात करेंगे। बाकी तो मैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर आपको सब पढ़ा दिया है, यहाँ पर आप ये दो जीन के बारे में याद रखेंगे। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, अच्छा इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफेसियंस यूज करते हैं, नो फन इन टेलिंग। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है आपके पास, एक ऐसा कॉटन प्लांट जिनके अंदर ये दो जीन इंट्रोड्यूस किए हैं, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बोलते हैं बीटी कॉटन। तो सवाल पूछा गया था बीटी कॉटन के अंदर कौन कौन से दो जीन होते हैं, आंसर वुड बी CRY1AC एंड CRY2AB। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप इज कॉल्ड एज बीटी कॉटन एंड इट कंटेन्स बीटी टॉक्सिक जीन अगेंस्ट द कॉटन बॉलवॉर्म। सिमिलरली रिसेंटली आपने एक और अप्रोच शुरू किया, ये ना नेचुरल जीन होते, सिंथेटिक जीन नहीं होते, ये भी याद रखना। सिमिलरली आजकल जो करंट अप्रोच है वो है बीटी कॉर्न का, और बीटी कॉर्न के अंदर जो जीन यूज होता है वो होता है CRY1AB। सिमिलरली CRY1AB is used for BT corn. So don't get confused with BT cotton and BT corn. BT corn का जीन होता है CRY1AB, BT cotton के जीन होते हैं CRY1AC एंड CRY2AB। अब रिसेंट एडवांसमेंट है तो ये जो ये जीन यूज़ होता है ये सिंथेटिक फॉर्म में यूज़ हो रहा है। जो आपको बीटी कॉर्न वगैरह के बारे में, जो आपको बीटी कॉर्न के अंदर होती डिजीज़ उसको बोलते हैं कॉर्न बोरर डिजीज़। तो कॉर्न बोरर डिजीज़ से बचाने के लिए CRY1AB जीन यूज़ होता है, और कॉटन बॉलवॉर्म्स से बचने के लिए CRY1AC और CRY2AB जीन यूज़ होता है। तो रिसेंट एडवांसमेंट है, रिसेंटली प्रोड्यूस हो रहा है बीटी कॉर्न, और ये जो जीन यूज़ होता है बेटा CRY1AB, ये सिंथेटिक जीन है। दिस जीन हियर इज
सिंथेटिक जैसे हिरुडिन का यूज़ किया था, और ये जो 2 जीन थे ये वो नेचुरल जीन थे। तो कई बार ना आपसे अगर बीटी कॉटन में वापस आए 2 अलग अलग फ़ोटो आ जाते हैं आपके पास कि भाई बताओ कौन सा वाला इन्फेक्टेड है, कौन सा वाला नॉर्मल है। तो मैं एक नॉर्मल आपको कॉटन प्लांट का बना के दिखा देता हूँ और फिर एक इन्फेक्टेड वाले का भी बना के दिखा दूंगा। अगर मैं नॉर्मल वाले को बना के दिखाऊं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। इफ आई मेक ए नॉर्मल हेयर इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे आपको कॉटन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट, दैट इज अ नॉर्मल वन। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं हेल्दी बॉल, इसके अंदर कोई पोर वगैरह नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट हेल्दी बॉल। और अगर इंसेक्ट इन्फेक्टेड है तो इसका साइज बहुत, बताए ना, उसका प्रोडक्शन वगैरह बहुत कम हो जाता है। इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। This is the one which is infected ball. This is the one which is infected ball and it is having hole in it. Infected ball. ठीक है बच्चों, ये होगा बीटी कॉटन के बारे में। देन एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, बड़े सारे आर्गूमेंट थे जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए थे, ट्रांसजेनिक प्लांट वगैरह बनाए थे। इट हैज़ बीन आर्गूड दैट द ट्रांसजेनिक क्रॉप दे आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो ट्रांसजीन होता है वो ट्रांसफर हो सकता है बाई पोलेंस फ्रॉम दीज प्लांट टू देयर नियर बाई वाइल्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट। जो भी इनके वाइल्ड रिलेटिव्स होंगे, जहाँ जहाँ कौन ग्रो कर रहा होगा, अगर आपने ट्रांसजेनिक ग्रो कराया हुआ है तो ये जो जीन है दूसरे के अंदर इन्फेक्ट करेगा, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर देगा। साथ में ये जो जीन्स हैं, ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक। They might be toxic to the environment. They might be toxic or they might pollute the environment. तो क्या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना आसान है? आंसर इज नो। इथिकल इश्यूज है, बाद में ना इथिकल इश्यूज को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So these were 3 examples of gene addition. First example was concept of golden rice. Second example was first was in the food nutrition value enhancement, golden rice. Second was in the field of pharmaceuticals, that was your production of Hirudin in Brassica nippus, and third was BT cotton, or those plant which has been made pesticide resistant, or let's call that insecticide resistant. So students, this is all for today. I wish you a very good luck. आज हम यहीं रुक जाते हैं। उसके कल हम ये होगा जीन एडिशन वाले सारे एग्जाम्पल, कल हम पढ़ेंगे जीन सब्सट्रैक्शन वाले एग्जाम्पल। इन दैट जीन सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RNA interference technology. What is that RNA interference technology? I am going to discuss later on or in the next lecture. उसके अंदर पढ़ेंगे Melodogeny incognita resistant tobacco plant as well as a flavor saver variety of tomato. So today's lecture was mainly focused on gene addition. Next lecture would be mainly focused on gene subtraction. So this is all for today. Please stay safe and class is over. Thank you.